अगर आप BCA परस्यू कर रहे हैं एंड अपने करियर पाथ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता चले ना चले कि क्या करना है, एटलीस्ट ये ज़रूर पता चल जाएगा कि किस साइड नहीं जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जो यूजुअली BCA वाले स्टूडेंट्स को होते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। सबसे पहले तो हाउ टू compete with engineers for best IT jobs available. Now second question, should we go for MCA after BCA and if not MCA तो ऐसे कौन से अदर करियर ऑप्शन हैं जिनमें आप हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हो। Now third question is how to get a high paying job just after completing BCA. I know बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है। Fourth question, should we prepare for NIMSET? And fifth question is other career options apart from IT. I know this because बहुत सारे लोगों को IT में इंटरेस्ट नहीं होता है, so they look out for other career options. Alright, so coming back to first question, how to compete with engineers for IT jobs. I know सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, but here I am to answer that. अब यूजुअली BCA वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे थोड़े से सुपीरियर होते हैं एंड दैट्स वाई BCA स्टूडेंट्स को उनसे थोड़ा सा डर लगता है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इफ आई एम स्पीकिंग राइट। BCA वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, लाइक नंबर 1 परसीव्ड करिकुलम एडवांटेज, विच मीन्स कि इंजीनियर्स का 4-year प्रोग्राम होता है। यू ऑल नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट, which is more comprehensive with in-depth technical subjects and that's why BCA students को लगता है कि उनकी डिग्री तो सिर्फ 3 साल की है, which means कि in comparison to engineers उनका सिलेबस भी कम होने वाला है, प्लस उनका एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। Now second thing which BCA students feel is industry perception, which means कि ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं जो BTech ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि ऑन कैंपस प्रेफरेंस देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस BCA स्टूडेंट्स थिंक that automatically they are becoming second preference. Now third option, limited hands-on experience. अब obviously if you will compare to engineers तो उनके पास ज़्यादा live work होता है, they work on so many projects all together and उन्हें internship का भी काफ़ी ज़्यादा exposure होता है, जिसकी वजह से BCA students को लगने लगता है कि उनके पास तो कम practical skills हैं, which means कि शायद से उन्हें आगे जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम आएगी। And because of all these factors, BCA students lose their confidence to even think of competing with engineers. But let me give you a reality check here. मैंने खुद इंजीनियरिंग की है तो मुझे इंजीनियर्स की सच्चाई बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें लगता होगा कि 4 साल में इंजीनियर्स तो पता नहीं कितनी ही ज़्यादा कोडिंग कर लेते हैं, कितने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, दे आर नर्ड्स, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट लाइक दैट। Only 2 to 3% engineers are there जो actually कोडिंग पे ध्यान देते हैं, बाकी तो सब सिर्फ एग्जाम में पास ही हो रहे होते हैं and that's how they get their engineering degree. So on the basis of that I would say कि आप engineer से कम बिल्कुल भी नहीं हो। So number 1, skills matter most than degree. In today's world, companies focus more on skills than degrees. If BCA students have strong skills like coding, problem solving, etc., they can easily compete. Second is more opportunities in IT. The IT field is so vast that it requires professionals of all kinds. So if BCA students identify their niche, that means their specialization, they can easily stand out. Now third is certifications and projects are great equalizers. So which means certification in trending technologies like data science, AI and cloud computing along with hands-on project experience can level the playing field for BCA students when competing with engineers. So these certifications not only show your knowledge but also demonstrate your commitment to stay updated with industry trends. Adding real world projects to your portfolio further highlights your practical skills, making you a strong contender in job market. And fourth is soft skill can be a game changer. कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर हर BCA स्टूडेंट फोकस करे तो वो एक एज ले सकते हैं, विच मीन्स कि BCA स्टूडेंट्स को डरने के बजाय अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए एंड उन्हें लेवरेज करना चाहिए। इंजीनियर या नॉन इंजीनियर होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। ऑल राइट, नाउ हियर कम्स द सेकेंड क्वेश्चन,
Should we go for MCA after BCA? तो अब बात आती है MCA. See, doing an MCA after BCA is an obvious option. I know that. If you want to study more or want to have a master's degree. लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही MCA कर लेनी चाहिए. No, not at all. Let me break it down to you in 3 sections. When to go for MCA, when not to go for MCA, and third most, my favorite, you can do both. Alright. So number 1, when to go for MCA. According to me, अगर आपने अपने BCA में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मतलब एज सच कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, या फिर कोई इंटर्नशिप भी नहीं की है, सो इन दैट केस डायरेक्टली आफ्टर BCA जॉब मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए. आई वुड से इन टुडे सिनेरियो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. तो इन दैट केस आई फील कि आप MCA कर सकते हैं, मतलब आप उसे एज अ ऑप्शन प्रायोरिटी दे सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर MCA यू विल गेट 2 more years टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो. एंड ऊपर से आपके पास एक मास्टर्स डिग्री भी हो जाएगी, तो फर्दर इट विल ओपन गेट्स टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. नाउ सेकेंडली, अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर टेक वर्ल्ड में, एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर MCA. सो व्हेन नॉट टू गो फॉर MCA? तो अगर आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं, आपने ढंग से मेहनत की थी अपने BCA में, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज ली है, प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, एक तो इंटर्नशिप्स भी की हैं, देन यू कैन स्किप MCA बिकॉज आई फील you will learn more via 2 years of work experience rather than pursuing a degree. Okay, so second is, अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट टेक वर्ल्ड में नहीं है या किसी और नॉन IT फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन इन दैट केस MCA करने का लर्निंग वाइज कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. ओके, सो थर्ड, यू कैन डू बोथ. नाउ दिस इज माई पर्सनल फेवरेट ऑप्शन, बट हाँ, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी. तो अगर आप BCA के लास्ट सेमेस्टर में हो तभी भी यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी. सो जस्ट पुट दैट लास्ट सेमेस्टर इनटू लर्निंग टेक अबाउट ID, कोडिंग कैसे करते हैं, और या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज ले लो. एंड विद दैट यू इवन हैव टू फोकस ऑन योर ओन सब्जेक्ट्स. मतलब कि बस इतने ही पढ़ाई कर लो जिससे कि आपको एक जॉब मिल जाए. एंड देन वंस यू लैंड अप अ जॉब यू कैन गो फॉर ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री. अब ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी मास्टर्स कराई जाती है. अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख रहे होते हो वाइल डूइंग अ जॉब, एंड प्लस साइड बाय साइड आपकी मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाती है. नाउ दिस कैन साउंड अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टू सम पीपल, बट नाउ डेज ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट कंसिडर्ड लेस देन ट्रेडिशनल डिग्रीज, सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. सो थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब आफ्टर BCA. अब BCA के बाद एक हाई पेइंग जॉब लगना हर BCA स्टूडेंट का सपना होता है, और इवन अगर आप किसी Tier 2 या फिर किसी Tier 3 कॉलेज से भी हो, तभी भी अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करोगे ना, यू विल बी सॉर्टेड, ट्रस्ट मी. बट हाँ, अगर जॉब हाई पेइंग चाहिए तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, विच मीन्स कि ये नहीं करना है कि थोड़ी थोड़ी आप हर चीज़ ही पढ़ने लग रहे हो. मतलब कि किसी दिन आप C पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप फोकस कर रहे हो जावा पढ़ने पे, तीसरे दिन आप C++ कर रहे हो, देन फोर्थ डे यू थिंक कि मुझे लगता है मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहिए. नो, प्लीज डोंट डू दैट. सो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है. लाइक टू नेम अ फ्यू, यू कैन गो इनटू डेटा साइंस, यू कैन गो इनटू वेब डेवलपमेंट, you can go into app development, you can even go into cyber security. Okay, then next, after learning key skills, you have to focus on building a portfolio. तो अगर आप लोग एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स हाईलाइटेड हैं, then it is going to be a great advantage to you. Then third, what you have to do is you have to showcase your projects on GitHub profile and even on LinkedIn. After doing that, you have to focus on soft skills as well. अब आप ये लोग इमेजिन करो कि आपके टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप अपने इंटरव्यूअर से कम्युनिकेट ही ना कर पाओ तो उन टेक्निकल स्किल्स का क्या फ़ायदा होगा. I have seen such examples of people getting a job where they were weak in tech skills but very fluent in communication. And guess what? They got the job. Now, fourth will be to apply on platforms like Naukri and LinkedIn. And please remember, it is gonna take at least
2 to 3 months even to get an interview call. So please don't feel disheartened if you don't get a call in your first month. Just keep applying. Fourth question is, should we go for NIMSET? तो सबसे पहले तो let me tell you what NIMSET is. NIMSET, NIT MCA Common Entrance Test is a national level entrance exam conducted by National Institutes of Technologies, which is NITs for you, for admission to their MCA programs. ये एग्जाम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जाता है who wish to pursue an MCA degree at one of the finest NITs. So if you feel like अभी तक जो हुआ सो हुआ, लाइफ में जो किया सो किया, बट आज के बाद अभी से हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है एंड यू हैव दैट सेल्फ बिलीव कि आप निमसेट क्रैक कर लोगे, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस. क्योंकि अगर आप NIT से MCA करते हो देन उसकी ब्रांड वैल्यू कुछ और ही होती है. बट हाँ, मैंने वैसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स के ट्रैप में फंस जाते हैं. मतलब उन्हें अंदर से पता होता है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, बट फिर भी वो लोग पीयर प्रेशर में आकर प्रिपेयर करते रहते हैं and in that they end up losing 1 to 2 years. So please wisely make a decision. All right, now fifth question, other career options apart from IT. अगर आपने BCA किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ IT या फिर टेक में ही जॉब लो. Apart from IT भी there are so many fields which can promise you a great career, especially in today's world. These are the other options which you can see on your screen. Number 1, digital marketing, graphic designing, content writing, banking and finance, HR, event management, teaching, training. You can even go for government exams, for example, UPSC, SSC, railways, state level exams. 10th, creative careers, photography, videography, animation. If you are not interested in IT, identify your passion and work towards it. I know कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जितने भी करियर ऑप्शंस मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाए, they don't promise you that good career option as IT does. But trust me, it's not like that in today's world. मैंने ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे भी मैंने एनिमेटर्स देखे हैं जो एक्चुअली में IT लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं आज के टाइम पे. So if you explore wisely and discuss about that with actual people, you will get to know. So you just have to identify your passion and work towards it. Remember, your career decision should be a balance between your passion and market demand. So guys, ये थे आंसर उन क्वेश्चंस के जो हर BCA स्टूडेंट को परेशान करते हैं. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर शेयर करना. और याद रखो, इंजीनियर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्किल्स और डेडिकेशन के साथ आप किसी को भी बीट कर सकते हो. Catch you in my next video and till then keep learning and keep growing. Bye bye.